Ignited Minds Tutorials, a renowned online educational platform, has recently released a comprehensive series of videos on topic of probability for students of Class 10 studying under the CBSE and Maharashtra State Board curriculum. This initiative aims to simplify and enhance students' understanding of this crucial mathematical concept. The Probability video series provides a detailed explanation of concepts such as experiments, outcomes, events, sample spaces, and probability calculations. Through clear examples and step-by-step explanations, students can grasp complex concepts easily and develop a strong foundation in probability. These videos also cover important topics like theoretical probability, experimental probability, independent and dependent events, and the concept of permutations and combinations. By utilizing intuitive visual aids and real-life examples, the probability videos ensure students can apply these concepts in practical scenarios. Additionally, the series includes numerous practice exercises and solved examples that can help students assess their understanding and improve their problem-solving skills. Through this comprehensive learning experience, students can gain confidence in tackling probability-related questions. Ignited Minds Tutorials probability videos are designed to cater to the diverse learning styles of students. With its user-friendly interface and engaging content, this series is a valuable resource for students preparing for their Class 10 board exams. So, whether you are a CBSE or Maharashtra State Board student, Ignited Minds Tutorials probability videos are an effective tool to strengthen your understanding of this essential mathematical concept and score well in your exams. हो गया, डन डन, जल्दी 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 करना है भाई साहब. A bag contains 4 red, 3 blue and 2 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is red. तो हम यहाँ पे पहले इसको लिखें. देखो ये भाई साहब आपका MCQ का क्वेश्चन नहीं है, तो बाकायदा सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे. 31st वाला क्वेश्चन, लेट R be the event of drawing a red ball. ठीक है, तो आपके भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 4 + 3 7, 7 + 2 9 है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितनी हो जाएगी भाई साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हो गया आपका रेड कितने हैं भाई साहब 4, और टोटल कितना है आपका 9, 4/9. ठीक है, क्लियर है. सेकंड वाला क्या है भाई साहब आपका येलो. ठीक है, लेट वाई बी द इवेंट, let y be the event of drawing a yellow ball. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, this will be probability of y, that will be how much, yellow ball कितने हैं आपके 2. ठीक है, तो 2/9. ठीक है, क्लियर है. तो ये तो 31st वाला निपट गया. If a fair cone is tossed twice, find the probability of getting almost one head. Twice अगर हमने एक फेयर को टॉस किया है, सैंपल स्पेस कितना होगा पिंकी, फटाफट बताइए, फटाफट. 4-5 बार एक ही सवाल को अपन रिपीट कर चुके हैं. जल्दी जल्दी सैंपल स्पेस बताओ भाई साहब क्या आएगा. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे निधि. इससे आसान चैप्टर मैथ्स में नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है. अगर इसमें भी अगर सवाल नहीं लगा पा रहे हैं तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि आपका भाई साहब स्टडीज का साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है. यस संजम, 4 कैसे बता, इवेंट क्या क्या होंगे. सो आपका जैसे ये 32 है. ठीक है, ओके, चलिए बताइए क्या क्या हो जाएगा बोलो. सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा बोलो, बोल. हेड हेड, ओके, चलिए फिर हेड टेल, ओके, टेल हेड, टेल टेल. सिंपल सा तो है भाई साहब, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो, क्या क्या आ सकता है. ठीक है, सो ये हो गया आपका. इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार टॉस कर रहे हो ना, तो ये सारे आपके इवेंट्स हो गए. ऑलमोस्ट गेटिंग ऑलमोस्ट वन हेड, एक हेड का आने का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा. तो यहां पे आपका लेट हम मान लेते हैं, लेट H be the event, let H be the event of getting, let H be the event of getting almost one head. ठीक है, तो यहां पे H की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, क्या हो जाएगी, ये ऑलमोस्ट वन हेड. तो ऑलमोस्ट वन हेड, इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखो ऑलमोस्ट और
एट द मोस्ट, दोनों में फर्क है। ऑलमोस्ट मतलब एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या आ जाएगा बोलो, ये हो गया आपका हेड हेड, ठीक है, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड। तो आपका भाई साहब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है, क्लियर है। अ जार कंटेन्स 18 मार्बल्स, some are red and others are yellow. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is red is 2/3, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे एक जार है जिसमें 18 मार्बल्स हैं, ठीक है, टोटल आपके 18 मार्बल्स हैं। some are red and the others are yellow, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं let number of red marbles be n, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ येलो मार्बल्स कितने हो जाएंगे बोलो, 18 माइनस n, लेट नंबर ऑफ रेड मार्बल्स बी n, सो नंबर ऑफ येलो मार्बल्स इज हाउ मच, 18 माइनस n। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज n, 18 माइनस n हो गया। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इज 2/3, ठीक है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ drawing a marble which is red, ये कितना हो जाएगा बोलो, PR। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विच इज रेड, ये कितना हो जाएगा बोलो। तो यहां पे टोटल रेड मार्बल्स n और यहां पे कितना है बोलो, सॉरी रेड मार्बल्स कितने हैं भाई साहब आपके, n, और टोटल है आपका 18, है ना। ये आपका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड मार्बल्स विल बी हाउ मच, जितने नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हैं अपॉन टोटल, तो n/18। इस n/18 की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है 2/3, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब आपका 2/3 इज इक्वल टू n/18। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 × n इज इक्वल टू 2 × 18। सो देयरफॉर n की वैल्यू 2 × 18/3, 3 6 18, 2 6 12, n की वैल्यू हो गई भाई साहब 12, ठीक है, क्लियर है। एक आप लोगों से मेरे को ओके तो आपका देखो, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, ठीक है। तो डाई को 2 बार थ्रो किया गया है, तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो जाएगा बोलो, सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा बोलो। डाई को अगर 2 बार थ्रो किया गया है, व्हाट वुड बी द सैंपल स्पेस, 1 क्या क्या हो जाएगा, 1 1, वही सेम चीज है ना। ऐसा करते करते भाई साहब 1 6 तक, फिर इधर जाते जाते 6 1 से लेकर भाई साहब 6 6 तक, ठीक है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार डाई को थ्रो किया गया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, तो कौन कौन सी जगह पे 5 आ जाएगा आपका भाई साहब। तो हम यहां पे लिख लेते हैं लेट ई बी द इवेंट, let E be the event, let E be the event that 5 comes up at least once. Let E be the event that 5 comes up at least once. तो E में भाई साहब क्या क्या आ जाएगा बोलो, 1 5 आएगा, ठीक है। 2 वाले कॉलम में से क्या निकलेगा, 2 5, ठीक है, 2 5। 3 वाले कॉलम में से 3 5, 4 वाले कॉलम में से भाई साहब 4 5, और 5 वाले कॉलम में से 5 5। एटलीस्ट वंस है तो 2 बार तो आ ही सकता है, ठीक है, एटलीस्ट वंस बोला है, ठीक, 5 1, तो ये आपका 5 5 हो गया। और क्या क्या आ जाएगा बोलो, 5 4, ठीक है, फिर 5 3, फिर आपका हो गया 5 2, फिर आपका हो गया भाई साहब 5 1, फिर आपका बोलो कितना 6 5, फिर आपका हो गया 5 6, ठीक है। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया आपका, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ई अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हो गया आपका 11 अपॉन 36, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी 11 अपॉन 36। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, कभी भी नहीं आएगा भाई साहब, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, ना इसमें ना उसमें। कितना होगा, हाँ, तो आप देखो यहां पे किसी इवेंट का होना
और किसी इवेंट का ना होना, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आता है 1, ठीक है। तो अगर मैं ई बार ऐसा लिखूं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन इवेंट वेयर 5 डजंट कम, ठीक है, एट ऑल, दोनों में भी 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सो दिस विल बी हाउ मच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हैपनिंग, दिस विल बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 11/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हैपनिंग ये कितना हो जाएगा, 1 minus 1/36, so this will be 36 minus 1, so that's 35/36, probability of E not happening। हाँ क्या, अरे हाँ 11 है ना, 11 सॉरी 11, तो 6 minus 1 5, 3 minus 1 2, 25/36, ठीक है, ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? चलिए भाई साहब, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सवाल है, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रेपिटेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। चलिए फटाफट क्विक 2 डिजिट नंबर है, इन नंबरों से बनाया गया है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इट इज एन ऑड नंबर,